Hello student. Today in our computer science paper second chapter we are going to study about the logic gates and the sequential circuits. In this uh, we are going to start our new topic that is called as an flip-flops and the counters. Now what is counter? A counter is the most useful subsystem. Most of the complex digital system contains the several counters and the registers. A number of counters and register circuits can be designed as per the requirement. The ba the basic building block of the counter and the register is the flip-flop circuits. Okay, with the help of flip-flop circuits, these counter circuits uh, are being constructed. The counters has input in the form of chain of pulses. Now in the form of pulses the inputs are being given to the counters. The counters are useful for the dividing the frequency, addressing and as a use as a memory unit also. ओके ये जो काउंटर्स होते हैं ये बेसिकली फ्लिप फ्लॉप से क्रिएटेड होते हैं, फ्लिप फ्लॉप सर्किट से ये काउंटर्स क्रिएट होते हैं. ये जो काउंटर सर्किट्स होते हैं ये जनरली फ्रीक्वेंसी को डिवाइड और एड्रेसिंग, हमें जहाँ पे एड्रेसिंग का यूज़ होता है या फिर मेमोरी यूनिट्स जहाँ पे होते हैं, मेमोरी सर्किट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये काउंटर्स का यूज़ होता है. ये टॉपिक्स के अंदर हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स और काउंटर्स का स्टडी करने वाले हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप इज अ बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर नोन एज एन लैच. ओके, ये दो स्टेट्स में होते हैं, एक तो फ्लिप होता है और दूसरा होता है फ्लॉप होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं 0 और 1. ये दो स्टेट्स होते हैं और ये एज एन लैच की तरीके से यूज करते हैं, where it plays an important role in digital circuits such as registers, counters and memory circuits. यहाँ पे ये यूज होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप, जहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं या फिर मेमोरी सर्किट्स जहाँ पे यूज होते हैं वहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप्स का यूज होता है. द गेट्स एंड देयर डिफरेंट लॉजिक सर्किट्स इज अ वेरी इसेंशियल टू नो अबाउट द डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स एंड देयर एप्लीकेशन. हम लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ गेट्स, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर्स में देखा था व्हाट इज गेट, तो ये गेट से ही हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हमारे फ्लिप फ्लॉप्स. ओके, और ये मेमोरी यूनिट की तरीके से यूज होता है, in which memory element which can be operated in one state known as a set or flip, and the other state is can be zero known as reset or the flop. ओके, ये दो states होते हैं जो हम लोग with the help of gates हम लोग ये यूज करते हैं. जो वन, जहाँ पे वन इंडिकेट करता है सेट और हम लोग उसको बोलते हैं फ्लिप, और जीरो इट डिनोटेड एज एन रीसेट और द फ्लॉप. यहाँ पे थ्री टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप्स हम लोग को स्टडी करना है. फर्स्ट इज द आर एस फ्लिप फ्लॉप दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन reset and set flip flop, and D flip flop that is also called as a delay flip flop, JK flip flop. We have to study. First we are going to study about the RS flip flop. Now it is a basic circuit which requires the construction of other flip flop circuits. It has two input state, one is S and other is the R, and टू आउटपुट डिनोटेड एज एन क्यू एंड क्यू बार. ओके, यहाँ पे दो इनपुट्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के, एक होता है एस और दूसरा होता है आर, और यहाँ पे दो आउटपुट्स होते हैं, एक होता है क्यू और दूसरा आएगा क्यू बार. क्यू इज नॉर्मल आउटपुट, जो क्यू जो डिनोट करता है वो एक नॉर्मल आउटपुट रहेगा, और क्यू बार जो रहेगा जो क्यू का कॉम्प्लीमेंट होता है आउटपुट का. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन आउटपुट. नेक्स्ट इज द Next, this is the truth table for the RS flip-flop. Here, these are the possibility conditions that we are going to input to the RS flip-flop. First will be, suppose R will be 0, S will be 0, R will be 0, then S will be 1, R will be 1, then S will be 0, and R will be 1, then S will be 1. These are the condition. In first condition, if both the condition are 0 0, then the output will be the no condition,
and Q bar will also be the no condition. If it is R is 0 and S is 1, then the output will be 1. That means the flip flop is in reset state, and Q bar will be 0 because it is a complement of Q. Okay, if the condition of R is 1 and S is 0, then the Q bar will be Q will be 0, and it is said to be the flip flop is reset in first condition that it is set, and Q bar will be 1. In 1 1, that is in the race condition, that is we cannot say that what will be the output. Okay, now next, this is the symbol for the RS flip flop. Now what is RS flip flop using gates? Due to the integrated circuit technology, the flip-flop can be fabricated in form of gates. ओके, जैसे जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गेट्स हम लोग फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा. Okay, since NOR and NAND are called as an universal building block, the working of a gate circuit can be explained with their disable and the unable state. Okay, जैसे यहाँ पे NOR गेट और NAND गेट हम उसको यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं. तो वहाँ पे दो कंडीशंस आती है, एक होता है डिसेबल स्टेट और दूसरा होता है अनेबल स्टेट फ्लिप फ्लॉप्स का. इन द गेट फ्लिप फ्लॉप सर्किट, टू गेट्स आर क्रॉस कपल्ड टू द लैच ईच अदर. ओके, यहाँ पे दो गेट्स यूज करते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कपल्ड होते हैं, और लैच की तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. पहला स्टेट होता है दैट इज कॉल्ड एज एन डिसेबल स्टेट. ओके, व्हेन one of the input is known and if it is high or 1, without knowing the other input, we can be determine its output and it is 0. Okay, hence when one of the input to the NOR gate is 1, it is disable, its output is 0. Okay, यहाँ पे अगर सपोज हमें एक इनपुट पता है और वो हाई रहेगा जनरली, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका आउटपुट जो रहेगा इट विल बी द 0, और हम लोग उसको बोलते हैं ये डिसेबल स्टेट में होता है. और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एन अनेबल स्टेट. व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट ऑफ NAND गेट इज नोन, यानी एक अगर इनपुट हमें पता होता है एंड इफ इट इज 0, इट्स आउटपुट मस्ट बी हाई. ओके, एंड गेट है, अगर ये 0 अगर ये होता है और दूसरा अगर नोन रहेगा तो आउटपुट में ये 1 रहेगा. इट इज सेड दैट द गेट इज अनेबल वॉट एवर मे बी द अदर इनपुट. जो भी कोई इनपुट रहेगा दूसरा, अगर एक इनपुट यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा जो आउटपुट जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाई रहने वाला है. क्योंकि अगर हम लोग एंड गेट का अगर ट्रूथ टेबल अगर देखते हैं, 0 इंटू 0 अगर होता है, कोई भी अगर मल्टीप्लाई 0 से होगा तो उसका आउटपुट 0 आएगा. ये नैन गेट है, यानी यहाँ पे नॉट एक अटैच है तो उसका वो इनवर्स होगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा. ओके, यानी अगर आउटपुट यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये गेट जो है ये अनेबल स्टेट में. अभी हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. सपोज when S is 0 and R is 0, the flip flop will not change its state. ओके, यहाँ पे अगर ये दोनों भी अगर 0 रहेंगे तो यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप रहेगा वो कोई भी स्टेट को चेंज नहीं करता है, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं नो चेंज, और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय NC. ओके, दिस इज नोन एज द NC कंडीशन. व्हेन S इज 0, सपोज S अगर 0 रहेगा and R will be the 1, then the upper NOR gate is disabled, which will produce the Q bar is equal to 0, and uh, the input to the low NOR gate becomes 0 as 0, Q0 as 0, which will produce the Q bar that is 1. This condition is known as the reset condition. Okay, this condition is also called as an reset. This output will latch another NOR gate. ओके, ये सर्किट है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये 0 होता है, ओके, ये
दैट इज एस अगर जीरो रहेगा, आर अगर वन रहेगा, तो यहाँ पे जो अपर नॉर गेट रहेगा ये डिसेबल स्टेट में चला जाएगा और क्यू बार वो क्या जनरेट करेगा, जीरो जनरेट करेगा। ओके, टू द लोअर नॉर गेट बिकम्स क्यू जीरो रहेगा और एस क्या रहेगा, यहाँ पे भी अगर जीरो रहेगा, दिस विल प्रोड्यूस द क्यू बार वन। यानी क्या होता है कि जो हमारा जो ये फ्लिप फ्लॉप होता है ये रीसेट कंडीशन में जाता है और यहाँ पे जीरो एज एन आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट व्हेन s इज वन, अगर s वन रहेगा और s अगर जीरो रहता है, सॉरी r अगर जीरो रहता है, देन द लोअर नॉर गेट जो रहेगा वो ये वाला जो गेट रहेगा वो क्या रहेगा, डिसेबल स्टेट में रहेगा, विच विल प्रोड्यूस क्यू बार एज अ जीरो। ये जीरो रहेगा, यहाँ पे ये आउटपुट में ये जीरो जाएगा और ये जीरो रहेगा, यानी यहाँ पे एडिशन होगा, जीरो प्लस जीरो दैट विल बी द जीरो। नॉट गेट है इसलिए यहाँ पे इसका इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे आएगा वन। यानी क्या रहेगा कि आपका जो फ्लिप फ्लॉप है ये सेट कंडीशन में आएगा, दैट विल बी योर सेट मीन्स व्हाट, वन। ओके, नेक्स्ट जो कंडीशन होती है, जो लास्ट कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन वन एंड वन। इफ आर इज वन एंड एस इज वन, then according to the disable states of NOR gate, both the gates are disable। ये दोनों भी कंडीशंस क्या आ जाएगी, डिसेबल आ जाएगी, बट पार्शियली देर इज अ रेस बिटवीन द टू नॉर गेट्स। यहाँ पे टू नॉर गेट्स के बीच में रेस रहेगी। इन दिस सिचुएशन वी कैनॉट डिटरमाइन द आउटपुट स्टेट, इट मे बी सेट और रीसेट, हैंस दिस इज अनप्रेडिक्टेबल स्टेट इज नोन एज एन रेस और द फॉरबिडन स्टेट। यानी यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है। ओके, इसके वजह से दैट इज कॉल्ड एज एन रेस कंडीशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन फॉरबिडन कंडीशन। नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखना है कि दूसरा एक गेट दिया है विद द हेल्प ऑफ नैन गेट। हम लोग ने यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप जनरेट किया है, इसका वर्किंग सेम होता है एज एन नॉर गेट से बनाया हुआ जो फ्लिप फ्लॉप रहता है, सेम वही कंडीशन रहती है। सेम यहाँ पे दो ही कंडीशन में डिफरेंस होता है, दैट इज वन वन एंड नेक्स्ट इज द जीरो जीरो। जहाँ पे हम लोग ने नॉर गेट के अंदर वन वन अगर रहेगा तब वहाँ पे रेस कंडीशन आती थी, यहाँ पे अभी जीरो जीरो जब रहेगा तब यहाँ पे रेस कंडीशन आती है, और जब वन वन होता है तो यहाँ पे नो चेंज आता है। दिस इज द सिमिलर वे दैट नॉर गेट एंड विद द यूजिंग नॉर गेट एंड नैन गेट वी कैन कंस्ट्रक्ट द फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट इज द क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोग यहाँ पे एक एक्सटर्नली सिग्नल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो भी हम लोग ने अभी अपर साइड में जो स्टडी किया था, ये थेरोटिकल सर्किट्स होते हैं दैट ट्रांसमिट द इनपुट टू द आउटपुट विदाउट एनी कंट्रोल। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, सेम वही होता है जहाँ से अपर साइड में, ये हम लोग थेरोटिकली बोलते हैं। पार्शियली कंट्रोल इनपुट इज connected to the additional to R and S input to operate the flip-flop in synchronization with the main circuit. The whole system is operated with a common control signal known as an clock। हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन के लिए यहाँ पे हम लोग एक क्लॉक यहाँ पे जनरेट कर क्लॉक कनेक्ट करते हैं, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्लॉक हम लोग ने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, सॉरी लगाया हुआ है। यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है जहाँ पे क्लॉक अगर जीरो रहता है और क्लॉक अगर वन रहेगा तो क्या होने वाला है। ओके, with the refers to the truth table, the flip flop is enable only when the clock is high। जब भी क्लॉक हाई रहेगा तभी हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, वर्किंग में आता है। अगर ये जीरो रहेगा तो ये नो कंडीशन में चला जाता है। ओके, इफ द क्लॉक इज लो और जीरो, द फ्लिप फ्लॉप इज इनएक्टिव, द सर्किट रिमेन्स इन द लास्ट स्टेट और द नो कंडीशन। ओके, यहाँ पे अगर जीरो जीरो रहेगा तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते और वो इनएक्टिव में रहता है। व्हेन द क्लॉक इज absent और बोथ द और लो, बोथ द एंड गेट इज डिसेबल, यहाँ पे दोनों भी एंड गेट डिसेबल रहेंगे, हैंस देयर इज नो इनपुट to the internal RS flip flop, thus no change to the output, that is the LC। okay, no change आता है। when the clock is low, the output of flip flop remains in its last state or irrespective to the R and S। it is indicated as the X
वेयर एक्स इज नोन एज द डोंट केयर कंडीशन। ओके, यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन में ये चला जाता है। थैंक यू।